हे एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में मैं बेसिकली 3 महीने का इंस्टाग्राम रील कंटेंट बैच फिल्म करूँगा और इसे मैं एडिट भी करूँगा एंड आई विल डॉक्यूमेंट दिस एंटायर प्रोसेस इन दिस वीडियो इटसेल्फ। सो लेट्स जस्ट जंप राइट इनटू इट। सो एज यू गाइज कैन सी माई फोल्डर स्ट्रक्चर। यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स है। आई हैव पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 ऑफ द सेम रील. रीज़न वाई आई डिवाइड माई एंटायर रील इंटू डिफरेंट क्लिप्स एंड सेक्शंस इज़ बिकॉज जब मैं फिल्म करता हूँ मेरी रील्स, आई एक्चुअली हैव टू मेक श्योर कि जो भी मेरी कॉन्टेंट है, जो भी मेरी स्क्रिप्ट है, आई गो बाय इट एग्जैक्टली लाइक दैट. तो कई बार क्या हो जाता है कि व्हेन आई एम एक्चुअली फिल्मिंग माई रील्स, मैं बैच कॉन्टेंट प्रेफर करता हूँ. लाइक even now I have filmed about 3 months of content, and it makes things pretty simple for me so that I can focus on other things and I don't have to primarily focus on creating content and publishing on my social media platforms. तो यहाँ पे when I have the script in my hand, तो it has, कोई भी रील अगर आप देखते हो तो it needs to have a hook which grabs users attention and makes them wanna watch the entire reel till the end. तो हुक जो होती है वो पहले मैं वो पढ़ता हूँ, आई मेमोराइज इट, देन आई कंटिन्यू टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. वंस दैट इज डन, आई स्टॉप द फिल्मिंग, देन आई read a part of my script, and then I say, let's say these are the 5 tips to learn about whether do follow links are good for you or no follow links. तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं. तो let's just say I have 5 tips for it. तो पहला टिप मैं पहले पढ़ता हूँ, then I memorize and then I speak. अदरवाइज़ क्या हो जाता है कि जब मैं सारी चीज़ें एक साथ करने जाता हूँ तो व्हाट हैपेंस इज उसके लिए मुझे काफ़ी सारे रीटेक्स लगते हैं. आई मिस आउट ऑन सम थिंग्स विच आई लेटर ऑन रियलाइज आफ्टर वॉचिंग द एंटायर रील. आई डोंट लाइक वेस्टिंग माई टाइम, सो दैट्स द रीज़न वाई आई बेसिकली डिवाइड माई एंटायर reel into different sections, and that's pretty much everyone does. Like in terms of making any content, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स भी ये करते हैं कि जो भी whatever they have to speak in terms of when they are actually providing informative content, they do it like this. They divide their entire YouTube video into different sections and clips because they can't memorize the entire thing. यहाँ पे it's different. When I'm filming my YouTube videos, I don't actually make it in clips. कई बार होता है क्योंकि formats are different. Like for this video itself, you first saw me talking about what this video is all about. Then you saw a little bit of B-roll of me filming the reels, and then it's a screen recording. So यहाँ पे the case is different, but since this is a video documentation, I don't actually prefer going the route of dividing my clips into different sections of particularly YouTube videos. But for reels, I do this. तो यहाँ पे मेरी 4 clips हैं which I'll be using. और इसके अलावा मेरे पास और भी काफ़ी सारे SFX हैं. There are some PNG images and some transitions and B-roll footage which I have seen a lot of creators using in their reels. So I found these all. You can find these in the video description or in the pinned comment section. So just check it out if you would like to download these and make use of it. So you can do this. अब मैं सबसे पहले इससे ये जो सारी क्लिप्स है, जो भी सारे एसेट्स हैं, मैं सबसे पहले मेरे वीडियो एडिटर में नहीं इंपोर्ट करूँगा, बिकॉज बिफोर आई इवन ट्राई एंड एडिट द वीडियो इटसेल्फ, व्हाट आई प्रेफर डूइंग इज आई एडिट माई ऑडियो फर्स्ट. तो यहाँ पे होता ये है कि right now when I'm filming my YouTube videos, I use my condenser mic, but when I am actually filming my reels and all these things, I don't have a separate mic, wireless lavalier mic or condenser mic which will have an attachment to the phone. नहीं, जो भी ऑडियो रिकॉर्ड होता है, it is being it's been done on my phone itself. और जो फ़ोन होता है उसका microphone is not that great and it's at a distance. तो you have to first remove the background noise. जो भी हवा की आवाज़ होती है, like fan noise, different traffic noises, जो भी घर में काफ़ी लोग होते हैं, I'm not the only one staying in my house, तो उनकी जो भी कुछ
अगर चीज़ें यहाँ पे कैप्चर हो जाती है तो आई हैव टू कट इट आउट एंड आई हैव टू मेक श्योर दैट इट डजंट गेट यू नो प्रोसेस्ड इन माई वीडियो. तो आई हैव टू फर्स्ट एक्सट्रैक्ट द ऑडियो. क्योंकि यहाँ पे 4 है, आई विल फर्स्ट इम्पोर्ट ऑल दीज 4 in one audio editor tool which I use when I am even editing my YouTube videos, which is Audacity. Now Audacity is a completely free audio editing tool. You can find it on Mac and Windows systems as well. तो यहाँ पे मैं बेसिकली इसे ड्रैग करूँगा और यहाँ पे आके मैं डाल दूँगा. नाउ यू विल सी दैट यहाँ पे क्योंकि 4 पार्ट है तो आई हैव टू क्लब देम टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल ऑडियो पीस, राइट. आई कांट डू दिस, लाइक हर एक के लिए अलग अलग नहीं कर सकता मैं. तो यहाँ पे ये जो है इससे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऊपर ले जाऊँगा. नाउ यू कैन सी पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों कंबाइन हो गए, राइट. देन आई हैव पार्ट 3. अब इससे भी मैं ऊपर ले जाऊँगा एंड आई जस्ट यहाँ पे ले जाने के बाद आई कैन जस्ट स्क्रोल एंड यस, ये भी हो गया. तो ये तो हो गए 3 पार्ट. नाउ वेयर इज द 4th पार्ट? ओके, हियर इज द 4th पार्ट एंड हियर वी हैव. इससे मैं थोड़ा सा ड्रैग करूँगा, राइट. नाउ फॉर बिगिनर्स हु विल बी डूइंग ऑल दीज थिंग्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, उनको ये चीज़ें काफ़ी डिफिकल्ट या टाइम कंज्यूमिंग लग सकती है. इवन आई फाउंड इट वेरी टाइम कंज्यूमिंग द वेरी फर्स्ट टाइम, बट नाउ आई हैव सम एक्सपीरियंस being shot so many courses and YouTube videos, so I can do this pretty much fast. तो यहाँ पे you can see there is some gap between these 2 videos, right. ये एक पार्ट 1 की वीडियो की ऑडियो फाइल है, ये पार्ट 2 वीडियो की ऑडियो फाइल है. तो इन दोनों के बीच में there is you can see some gap. तो ये जो है यहाँ पे I'm not talking anything. तो ये this is the part where I can tell Audacity to capture it as a background noise and remove it throughout the entire clip. So ये करने के बाद I can just go to effect, click on noise removal and repair, click on noise reduction and select get noise profile. Once it does this, I can select command A so that पूरी clip मेरी select हो जाएगी. Or you can even hold control and A if you are using the Windows system, and I can make use of command R or control R so that जो भी इसने यहाँ पे use किया था to capture the noise, the background noise, it will apply the settings and it will remove it throughout the entire thing. Now you didn't see a loading screen क्योंकि यहाँ पे जो पूरी audio file है, it is not even 60 seconds long. It's about 44 seconds. तो when the clips are short, यहाँ पे loading जो भी है to process and apply all these settings to your entire clip might not be displayed on your screen. अगर आपका processing power laptop की slow है, then it will show up. But since I'm using a Mac system, it's pretty fast. तो ये noise removal हो जाने के बाद what I prefer to do is I try to change the pitch of my voice. Now this is just my personal preference, क्योंकि मुझे चाहिए कि मेरी आवाज़ जो है वो थोड़ी सी deep present हो, because my voice naturally is not that deep. But when you are actually sitting in an environment जहाँ पे बहुत सारा शोर शराबा है and you can't actually plug in your headphones into your system, whether you are using your laptop, your computer or your mobile device, तो speaker के you have to rely on the speakers. तो speaker strong नहीं होते इतने to तो वहाँ पे if you change the pitch of your voice, speaker से भी जो sound आती है it will be better. So यहाँ पे I know that when I use -0.5, my voice is like exactly how I want it, but you can play around with the settings to see कि कहाँ पे your voice sounds perfect. यहाँ पे कोई cookie cutter solution नहीं है. It's not like to make the or to change the pitch of the sound. It's not as such any fixed formula that you have to make use of -0.5. This is what works for my voice. So you have to test it out and see what works for you. And I'll just apply. ये apply हो जाने के बाद it has applied. Now the next thing I would want is to change the filter curve EQ. तो यहाँ पे मैं effect में again आऊँगा EQ and filters, filter curve EQ. यहाँ पे I will make use of presets and settings, factory presets and bass boost. तो यहाँ पे जो sound में जो bass है, वो enhance हो जाएगा. तो I'll just apply this. And काफ़ी सारे हम देखते हैं कि YouTube videos में they are sitting in a voice proof room. तो वहाँ पे जो sound आती है, you can exactly replicate that kind of a sound by making use of this bass boost effect in your Audacity. ये हो जाने के बाद I'll again go back to the same place and instead of bass boost I'll select treble boost. ठीक है, treble boost ये होता है कि bass ये होती है जहाँ पे sound में
वाइब्रेशंस होती है या फिर जो डीपनिंग साउंड होती है, इवन वेन यू आर यूजिंग म्यूजिक, जो भी ड्रम रोल्स बीट्स होते हैं वो सारी बेस होती है। ट्रेबल्स आर दोस्त जहाँ पे जो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन म्यूजिक एंड साउंड, बट आई नो सम ब्रीफ ओवरव्यू अबाउट ऑल दीज थिंग्स, कि जो भी ट्रेबल मतलब जो भी जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या जो वॉइस होती है जहाँ पे देर इज सम, हाउ डू आई पुट इट, जैसे कि एक एग्जांपल दूँ तो गिटार की जो साउंड है, तो गिटार की वॉइस को एनहांस करने के लिए दैट इज़ वेर यू यूज़ अ ट्रेबल बूस्ट। तो if you guys think that I am wrong, you can correct me in the comment section, but this is what I think your treble boost is used for. Then you have, again, I'll go to the same settings place and I'll change this to low roll off for speech. अब इससे होता ये है कि कई बार हम क्या होता है कि स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, जस्ट लाइक नाउ हाउ इट हैपेंड, और जो प्रोनाउंसिएशंस आपको चाहिए कुछ वर्ड्स के लिए, इट डजेंट हैपन एवरी टाइम। तो वो चीज़ें अवॉइड करने के लिए you need to make use of this low roll off for speech. तो apply this and the next यहाँ पे वॉल्यूम एंड कंप्रेसर में I'll make use of compressor. अब इससे होता ये है कि जो आवाज़ थोड़ी कम साउंड कर रही थी वो ज़्यादा साउंड होगी, और जो ज़्यादा साउंड हो रही थी उससे थोड़ी कम साउंड होगी, तो इट इक्वलाइजेस दी एवरीथिंग. सो दिस इज़ कंप्रेसर. और लास्टली सेम वॉल्यूम एंड कंप्रेसर में मैं यहाँ पे लिमिटर में जाऊँगा एंड आई विल मेक यूज़ ऑफ हार्ड लिमिट. तो यहाँ पे लिमिट में ना देर आर मेनी ऑप्शंस लाइक सॉफ्ट, हार्ड क्लिप एंड हार्ड लिमिट. तो आई जस्ट सिलेक्ट हार्ड लिमिट एज द प्रीसेट एंड आई अप्लाई दिस. अब इससे होता है कि जो भी साउंड कंप्रेसर यूज़ करने के बाद समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कोई साउंड्स ना एकदम काफ़ी हाई पिच्ड हो जाती है विच माइट हर्ट इन योर हेडफोन्स. तो वो चीज़ें कट आउट कर जाती है और इससे पूरा इक्वलाइज कर जाती है. तो दैट्स वाई यू यूज़ लिमिटर. फाइन. अब ये हो जाने के बाद आई विल एक्सपोर्ट दिस, सो आई कैन क्लिक ऑन फाइल and I will export this in the form of MP3. अब यहाँ पे काफ़ी सारे फॉर्मेट्स है, बट दिस इज़ द फॉर्मेट विच आई स्टिक टू बिकॉज MP3 और MP4 काफ़ी वाइडली यूज्ड है और बहुत सारे एडिटिंग टूल्स में इट बिकम्स ईजियर टू यूज़ इन डिफरेंट एडिटिंग टूल्स. तो यहाँ पे आई जस्ट मेक यूज़ ऑफ दिस. लेट मी जस्ट चेंज द फाइल डायरेक्टरी एंड आई एक्सपोर्ट दिस. तो यहाँ पे मेरी फाइल एक्सपोर्ट हो गई है, यू कैन सी राइट हियर. अब यहाँ पे सिर्फ पार्ट 1 दिखेगा सिंपली बिकॉज यहाँ पे जो पहली क्लिप है उसका नाम पार्ट 1 है. बट एक्चुअली में यू विल फाइंड दैट चारों क्लिप कंबाइन हो के आई है. तो इफ़ आई जस्ट क्लिक ऑन गेट इन्फो यू विल फाइंड कि 44 सेकेंड्स की ड्यूरेशन है विच इज़ द एग्जैक्ट सेम ड्यूरेशन. यू कैन सी राइट हियर 44 ड्यूरेशन, राइट. सो यहाँ पे मैं इसे क्विट कर दूंगा यहाँ से. सो क्विट करने के बाद दिस इज़ वॉट आई गेट एंड आई कैन जस्ट चेंज द टाइटल ऑफ दिस थिंग टू जस्ट दिस. ओके, नो पार्ट 1 पार्ट 2 नथिंग. तो ये हो जाने के बाद वन मोर थिंग विच आई लाइक टू डू इज़, इससे और ज़्यादा बेटर करने के लिए आई मेक यूज़ ऑफ Adobe Podcast. Now this is a recently launched product by Adobe. It's an AI tool which anyone can use for completely free of cost. कुछ नहीं करना, बस just log in with your Google account and you'll be able to use these different options. तो यहाँ पे I generally use enhanced speech option. तो ये यहाँ जाने के बाद I can just drag and drop my audio file, but I have to make sure that जो भी मैं audio file upload कर रहा हूँ वो 30 मिनट से ज़्यादा ना हो, क्योंकि वो फरना एक्सेप्ट नहीं करेगा. एंड एक दिन में मैं मैक्सिमम 1 आवर की फाइल अपलोड कर सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ. एंड द फाइल साइज विच इट अलाउज इज अबाउट 500 MB. फाइन. यहाँ पे प्रो प्लान्स भी है जहाँ पे देर इज़ नो एज सच लिमिट. यहाँ पे 4 घंटे का ऑडियो फाइल यू कैन इम्पोर्ट एंड अप टू 1 GB ऑफ फाइल साइज एंड थिंग्स लाइक दैट. तो यहाँ पे मैं बेसिकली इसे ड्रैग करूँगा, ड्रॉप करूँगा एंड इट विल एनहांस द वॉइस सच दैट कि जो पॉडकास्ट एनवायरमेंट, जो भी पॉडकास्ट आप सुनते हो तो वहाँ पे वॉइस कैसे एकदम क्रिस्प साउंड करती है. देयर इज़ नो बैकग्राउंड नॉइस. और दो एनवायरनमेंट में होती है काफ़ी सारी बैकग्राउंड नॉइस, पर माइक सिर्फ और सिर्फ जो पर्सन है जो क्वेश्चंस पूछ रहा है और जो पॉडकास्ट गेस्ट है उनकी ही आवाज़ कैप्चर होती है. तो दिस इज़ एन एक्सेलेंट टूल टू एनहांस योर ऑडियो फाइल इन अ मच बेटर वे. तो जस्ट मेक श्योर यू अपलोड दिस एंड यहाँ पे कुछ नहीं करना, इट विल डू एंटायर थिंग फॉर यू. इवन इफ यू कांट मेक यूज ऑफ Audacity, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप योर ऑडियो फाइल ओवर हियर एंड इट विल डू द एंटायर जॉब फॉर यू. तो बस ये हो जाने के बाद आई विल जस्ट क्विकली गो ऑन टू माई DaVinci Resolve विच इज़ माई गो टू वीडियो एडिटिंग प्लेटफॉर्म. तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आई हैव ऑल माई फाइल्स विच आई इम्पोर्ट इट इन टू DaVinci Resolve. अब DaVinci Resolve कुछ ऐसा दिखता है. इट्स अ फ्री वीडियो एडिटिंग प्लेटफॉर्म विच यू कैन यूज़ ऑन एनी सिस्टम वेदर यू यूजिंग अ मैक और विंडोज सिस्टम. अब मैक में ऑप्शंस काफ़ी लिमिटेड हो जाते हैं क्योंकि ओवर हियर यू कांट पायरेट एनी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर लाइक हाउ यू कैन डू इट इन विंडोज़. मुझे याद है मैं पहले विंडोज़ में जब
मैं विंडोज सिस्टम यूज़ करता था, आई यूज़ टू मेक यूज़ ऑफ फिल्मोरा, पर फिल्मोरा में भी ये होता था कि इट यूज़ टू हैव वाटरमार्क फॉर द फ्री ऑफिशियल प्लान, पर मैंने किसी तरीके से वो पायरेटेड सॉफ्टवेयर की कॉपी यूज़ कर रहा था मैं, पर इट वॉज नॉट द काइंड ऑफ आउटपुट विच आई वॉज एक्सपेक्टिंग. लाइक it was very basic. It's pretty much beginner friendly, I would say. But DaVinci Resolve is really cool and I would say industry standard level software. Like जो भी फिल्म मेकिंग में लोग होते हैं, they use this editing platform क्योंकि यहाँ पे कलर करेक्शन काफ़ी accurate level पे होता है. तो this is free. There is no watermark. और although it does require a lot of processing power, तो अगर आपका लैपटॉप जो है it's a really old or okay-ish gaming laptop, then don't even think of running DaVinci Resolve क्योंकि ये बार बार क्रैश होगा आपके सिस्टम में. But if you are using a Mac system like me, I'm using a 2020 MacBook Air. मैंने लिया था काफ़ी बाद, लेकिन ये मेरा मॉडल 2020 वाला है. तो if you are using MacBook Air with the M1 chip and so, तो यहाँ पे DaVinci Resolve एकदम मक्खन की तरह चलेगा. And if you are using Final Cut Pro, then तो there's no point even watching this video because I'm using a completely different software. तो CapCut क्योंकि इंडिया में बैन है या इसलिए I can't use it. Otherwise, I've seen so many people who edit their reels and it happens so faster. User friendly है, काफ़ी beginner friendly है. There is no watermark. काफ़ी सारे built-in effects है, titles है, and there are so many options like auto generated captions भी उसमें available है. तो things are pretty easy over there. बट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है DaVinci में. यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन, बट आई विल शो वन मैजिक ट्रिक. ठीक है, तो स्टिक विथ मी थ्रू आउट एंड बिकॉज आई विल शो वन इंस्टेंट वे, वन AI टूल यूजिंग विच यू कैन ऑटो जनरेट AI एनिमेटेड कैप्शंस. ठीक है, एनिमेटेड कैप्शंस होंगे लाइक हाउ यू सी द रील्स ऑफ एलेक्स हॉर्मोजी, जहाँ पे जो भी आप वर्ड वो बोल रहे हो दैट इज बीइंग हाईलाइटेड एंड इट एनिमेट्स. तो दैट काइंड ऑफ कैप्शन आई प्रेफर यूजिंग व्हेन आई एम ट्राइंग टू क्रिएट माई रील्स. So just stick with me throughout this and I'll show you my entire process how I edit my reels and how I will also add captions into it. तो यहाँ पे जब भी आप DaVinci Resolve खोलोगे, you might not find the entire user interface like me because I have done some customizations over here. तो ये जो पार्ट है यहाँ पे where my cursor is hovering around, तो इसे कहते हैं मीडिया पूल, जहाँ पे आप सारी चीज़ें अपनी इमेज फाइल्स हो गई, वीडियो फाइल्स है, ट्रांजिशंस है, ओवरलेस है, साउंड इफेक्ट्स है, ऑडियो फाइल्स है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंपोर्ट होके स्टोर होती है. तो दिस इज़ योर मीडिया फाइल. इसके नीचे आती है योर इफेक्ट्स टैब. यहाँ पे यू विल फाइंड अ बंच ऑफ डिफरेंट प्री बिल्ट. यू कैन सी टाइटल इफेक्ट्स, ऑडियो इफेक्ट्स, वीडियो ट्रांजिशंस एंड सो ऑन. तो ये दो चीज़ें मैंने एनेबल की, ये दो बटन्स क्लिक करके. एंड जो राइट साइड पे ये पार्ट है जहाँ पे लिखा हुआ है नथिंग टू इंस्पेक्ट, यू कैन इम्पोर्ट दिस, यू कैन मेक यूज ऑफ दिस बाय क्लिकिंग ऑन इंस्पेक्टर टैब. तो जस्ट डू दिस. ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज अ टाइमलाइन व्यू. ये तो रहेगा ही रहेगा फॉर श्योर. तो यू कैन व्यू योर टाइमलाइन राइट हियर. यहाँ पे देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस. तो कई बार क्या होता है, ट्रैक पैड पे आपका हाथ कहीं गलती से अगर चल गया तो इट माइट जूम इन और जूम आउट. तो जस्ट क्लिक ओवर हियर एंड क्लिक ऑन फिट और जस्ट प्रेस योर Z की ऑन योर कीबोर्ड. और जो यहाँ पे आप देख रहे हो वो तो टाइमलाइन है जहाँ पे यू विल एक्चुअल डू द एडिटिंग वर्क. ऊपर होगी आपकी वीडियो और नीचे होगी आपकी ऑडियो. तो आई होप दिस बेसिक थिंग्स आर क्लियर टू यू ऑल. यहाँ पे अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आई एम ऑन एडिट टैब. तो कई बार क्या होता है कि यू माइट बी ऑन कट टैब. तो कट टैब पे ये सारी चीज़ें आपको शायद नहीं दिखने को मिलेगी बिकॉज यहाँ पे बेसिक लेवल ऑफ कटिंग विल हैपन, लाइक दो क्लिप्स को काटना, जोड़ना, ऑडियो को ऐड करना. These are the things which will happen on cut side, which you can do the same thing in edit tab also, but edit में काफ़ी ज़्यादा एडवांस चीज़ें आप कर सकते हो. यहाँ पे मीडिया पूल के लिए एक अलग से टैब है, यहाँ पे कलर करेक्शन का एक टैब है over here, and this is the fusion tab where you can make use of motion graphics. अब अगर आप कोई Adobe प्रोडक्ट यूज़ करते हो, let's say you are using Premiere Pro, तो you first pay for Premiere Pro to edit your videos, then you pay for After Effects to create motion graphics. पर यहाँ पे DaVinci में you can actually do everything within this software itself. That's why I love it. तो यहाँ पे मैं basically यहाँ पे edit tab यूज़ करूँगा, color correction and fusion tab to show you all how I actually edit my reels. और लास्ट में जो rocket tab है, this is where you export your entire file. ठीक है, तो let's go भैया. और जो मीडिया फाइल है यहाँ पे मीडिया पूल में मैं सारी चीज़ें Ctrl A या Command A से सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें इंपोर्ट कर दूंगा. एंड यू कैन सी यहाँ पे प्रोजेक्ट चेंज करने को बोल रहा है. तो वन थिंग आई मिस्ड आउट ऑन,
कि मुझे क्या करना चाहिए था. आई शुड हैव राइट क्लिक ऑन द मीडिया पूल, आई शुड हैव गॉन ऑन द टाइमलाइंस एंड क्रिएट ए न्यू टाइमलाइन. तो यहाँ पे मेरी जो सारी वीडियोस है यहाँ पे, दे हैव डिफरेंट एस्पेक्ट रेशियोज. लाइक यू कैन सी ग्रिड वाली जो वीडियो है यहाँ पे, इट हैज़ दिस 9:16 एस्पेक्ट रेशियो, जो हमारी सेलफोन की स्क्रीन होती है, दिस काइंड ऑफ एस्पेक्ट रेशियो. और जो मेरी बाकी की वीडियोस है, लाइक माई बी रोल फुटेज, लाइक या स्क्रैच पेपर या पेपर ग्रिड, ये सारी 16:9 वाली है, जो कि आप अपने लैपटॉप स्क्रीन में या फिर टीवी में या फिर फिल्म्स जो सारे देखते हो, दैट इज़ ऑल 19:6 रेशियो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. तो एस्पेक्ट रेशियो यहाँ पे मेंटेन करने के लिए यू आर फर्स्ट सेटिंग अप अ टाइमलाइन एंड यू कैन गिव एनी नेम यू वुड वांट. मैं यहाँ पे सिर्फ टाइमलाइन 1 पे रख के क्रिएट कर दूंगा. यहाँ पे राइट क्लिक करके राइट क्लिक ऑन द टाइमलाइन एंड गो टू द टाइमलाइन सेटिंग्स. अब टाइमलाइन सेटिंग्स में जाने के बाद यू कैन फाइंड दैट जो वीडियो रेजोल्यूशन है वो 1920x1080 है, विच इज़ द फुल HD. पर इससे होता ये है कि इट विल बी इन अ हॉरिजॉन्टल लैंडस्केप फॉर्मेट. हमें चाहिए पोर्ट्रेट लाइक दिस, द 9:16 फॉर्मेट. तो इसके लिए बेसिक कुछ नहीं करना, बस अनसेलेक्ट दिस पार्ट एंड इंस्टेड ऑफ 1920 ओवर हियर यू विल शिफ्ट दिस ओवर हियर एंड जो 1080 है यहाँ पे अब डाल दोगे. तो आई विल मेक द रेजोल्यूशन एज 1080 by 1920. बेसिकली इंस्टेड ऑफ 16:9 you're using 9:16. फाइन. और यहाँ पे जो टाइमलाइन की फ्रेम रेट है, आई चेंज दिस टू 60 FPS, क्योंकि मैंने जो अपने फ़ोन के जो कैमरा से शूट की थी वीडियोस वो थी 60 FPS में. एंड मेरे जो भी बी रोल्स है, ट्रांजिशंस है, इवन दे आर रनिंग ऑन 60 FPS. इवन इफ दे आर नॉट, तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि जो मेरी मेन फुटेज है वो 60 FPS में है. तो इवन इफ माई अदर बी रोल फुटेजेस आर इन 24 और 30 और 26 FPS, द फ्रेम्स, ज़्यादा फ्रेम्स ऐड हो जाएंगे, तो ताकि पूरी वीडियो स्मूथ 60 FPS पर रेंडर होगी. ठीक है. सो दिस इज़ व्हाट आई डू. और यहाँ पे जो है, आई मेक श्योर दैट इट इज़ स्केल फुल फ्रेम विथ क्रॉप. अब इससे होगा ये कि जो भी वीडियोस मेरी ये वाला एस्पेक्ट रेशियो में, लाइक आई हैव फ्यू ऑफ द वीडियो ट्रांजिशंस लाइक फिल्म बर्न. तो अगर मैं फिल्म बर्न ओपन करके दिखाऊँ हाउ इट लुक्स लाइक, तो लेट मी जस्ट प्ले. यू कैन सी ये 16:9 में प्ले हो रही है एंड आई डोंट वांट इट टू प्ले इट लाइक दैट. आई वांट इट इन अ 9:16 फॉर्मेट. तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि आई विल हैव टू मेक यूज़ ऑफ दिस विच इज़ स्केल फुल फ्रेम विथ क्रॉप. तो ये इमेज को फ्रेम में अंदर डाल के जो चीज़ें अनवांटेड है वो क्रॉप कर देगा. फाइन. तो दिस इज़ व्हाट आई डू एंड आई सिलेक्ट ऑन ओके. तो यू कैन सी माई टाइमलाइन जो है, मेरी टाइमलाइन ये पूरी ऐसी फॉर्मेट में हो गई. फाइन. अब यहाँ पे मैं सबसे पहले जो भी मेरी वीडियोज़ है, दिस इज़ द पार्ट 2. यू कैन सी राइट मी एट द टॉप, यू विल फाइंड पार्ट 2. तो मुझे पहले इंपोर्ट करनी होगी पार्ट 1. तो वेयर इज़ इट, लेट मी फाइंड. ओके, तो यहाँ पे ये है पार्ट 1. फाइन. अब इससे मैं ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा. अब इसके साथ आप देख सकते थे जो ऑडियो है वो मेरे जो फ़ोन से ऑडियो कैप्चर हुई थी उसके साथ अटैच्ड है. आई विल रिमूव दिस लेटर ऑन, बट फर्स्ट व्हाट आई डू इज़ आई जस्ट मेक सम काइंड ऑफ अ ट्रेन. जो ट्रेन में बोगी से एक साथ कनेक्टेड होती है, वैसे मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 सारी चीज़ें एक लाइन में मैं पहले उससे जोड़ दूंगा. ठीक है. तो पार्ट 1 के एंड होने के तुरंत बाद आई वॉन्ट पार्ट 2 टू गेट स्टार्टेड. तो जब तक ये लाइन नहीं आती, this kind of a gray line, I will try to combine it together. यहाँ पे and I'm using my trackpad to scroll. Fine. Otherwise you can use your external mouse as well. यहाँ पे part 3 मैं जोड़ दूंगा, यहाँ पे part 4 as well. अब चारों मेरी क्लिप यहाँ पे अटैच हो गई and you can see about 44 seconds की क्लिप है मेरे पास टोटल. अब यहाँ पे मैं जूम आउट कर दूंगा इसे, और ये सारी क्लिप्स जो है मैं अपने शिफ्ट बटन जो है मेरे कीबोर्ड पे, आई हैव हेल्ड इट, तो होल्ड करके रखो अपना शिफ्ट की एंड सेलेक्ट ऑल द अदर क्लिप्स इन योर टाइमलाइन एंड जस्ट राइट क्लिक इन योर माउस एंड क्लिक ऑन लिंक क्लिप्स. तो इससे होगा ये कि जो भी अनलिंक्ड है वो लिंक हो जाएगी पहले. अब फिर उसके बाद आपको अनलिंक करनी है. क्यों अनलिंक करनी है? क्योंकि आपको नहीं चाहिए कि यू आर यूजिंग द ऑडियो फ्रॉम योर मोबाइल माइक्रोफोन. राइट. हमने जो ऑडियो प्रोसेस की थी, वी वॉन्ट दैट टू बी यूज्ड इनसाइड दिस टाइमलाइन. तो इससे मैं अनलिंक कर दूंगा पहले. अब ये जो है, अब इससे मैं डिलीट कर दूंगा. तो आई जस्ट डिलीट दिस एंड यू कैन सी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ वीडियो फाइल ही है यहाँ पे. ठीक है. अब इसके नीचे यू कैन सी एट द टॉप वी हैव वीडियो. अब ये वीडियो को जो है, अगर मुझे देखना है कि हर फ्रेम में क्या हो रहा है, तो आई कैन जस्ट मेक यूज ऑफ माई कर्सर एंड ड्रैग इट लिटिल बिट अप. और यहाँ पे ये मेरी ऑडियो फाइल है. यू कैन सी जब मैं यहाँ पे घुमा रहा हूँ तो यू कैन फाइंड दैट ऑडियो जो है वो काफ़ी अच्छा साउंड कर रहा है. इट इज़ मच मच बेटर प्रोसेस्ड. राइट. तो इससे मैं ड्रैग करूँगा, यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा. फाइन. अब अगर मैं प्ले करूँ तो जस्ट
नोटिस व्हाट हैपेंस। अब इससे मैं पहले इससे भी मैं पहले ऐसे कर देता हूँ सो दैट आई कैन सी द वेव फॉर्म्स। तो मुझे पता चले कि ओके दिस इज वेयर आई हैव टू कट, दिस इज वेयर दी empty spaces. You can see there is some silence, there is some nothing is going around. तो ऑडियो वेव फॉर्म्स देख कर एडिट करना, इट्स अ बेस्ट अप्रोच टू एडिट योर वीडियोस। तो ये करने के बाद आई जस्ट लिसन टू द साउंड, हाउ डज इट साउंड। कंफ्यूज्ड अबाउट टू फॉलो एंड अब एक चीज़ आप शायद नोटिस कर सकते हो कि ऑडियो माइट बी कमिंग ओनली फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ योर ईयर, राइट। मेरे लेफ्ट साइड के कानों में ही सिर्फ ऑडियो आ रहा है, राइट साइड में नहीं आ रहा है। नाउ दिस हैपन्स टू बी द प्रॉब्लम विथ माई DaVinci Resolve। आई डोंट नो, मैंने कुछ डिफॉल्ट सेटिंग्स में शायद कुछ चेंजेस किए हुए हैं, बट इफ़ यू आर फेसिंग द सेम इशू यू डोंट नीड टू वरी। आपकी ऑडियो अच्छी तरह से प्रोसेस हुई है। ओनली व्हेन यू इम्पोर्ट इट इनटू योर टाइमलाइन योर DaVinci messes up and it ruins it। तो यहाँ पे आई जस्ट हैव टू राइट क्लिक ऑन दी ऑडियो, क्लिक ऑन द क्लिप एट्रीब्यूट्स, और यहाँ पे व्हेन आई गो टू द ऑडियो टैब यू विल फाइंड कि जो ऑडियो है वो स्टीरियो मतलब दोनों जगह और मोनो मतलब सिंगल जगह, तो मोनो फॉर्मेट में है। तो आई हैव टू चेंज दिस टू स्टीरियो, और स्टीरियो में करने के बाद भी यू विल फाइंड कि जो लेफ्ट में है ऑडियो तो आ रहा है यहाँ पे चैनल 1, बट जो राइट है वहाँ पे म्यूट है। तो आई हैव टू अनम्यूट दिस एंड मेक यूज ऑफ द एम्बेड चैनल 1 in the right track as well। Once I do this and I click on OK, let me play and see if the sound is coming on the right hand side also or not। Confused about to follow and no, you can see अब दोनों जगह पे ऑडियो आ रहा है। ये हो जाने के बाद नेक्स्ट थिंग व्हाट आई डू इज, ये मेरी वीडियो बहुत वाइट है क्योंकि यहाँ पे आई एम मेकिंग यूज ऑफ एक्सटर्नल लाइट। यहाँ पे जो लाइट मैं यूज़ कर रहा हूँ इवन टू फिल्म माई यूट्यूब वीडियोज़, आई एम यूजिंग अ लाइट। तो ये लाइट की वजह से ना वीडियो इज़ वे टू ब्राइट, आई डोंट वांट सो मच ब्राइटनेस इन माई वीडियो। और जो बैकग्राउंड है इट लुक्स लाइक कि इट्स नॉट दैट स्टूडियो काइंड ऑफ एन इफेक्ट, इट्स लाइक कि मैंने अपने घर पे दीवार पे शूट किया है। ऑल्दो आई हैव शॉट इन माई बेडरूम, पर जब आप रील्स एडिट करते हो तो यू हैव टू मेक इट कम अक्रॉस एज वेरी प्रोफेशनल एंड वेरी मच लाइक टॉप नॉच क्वालिटी। तो इसमें शैडोज ऐड करने के लिए आई जस्ट सिलेक्ट दिस वन क्लिप। यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन इट एंड मेक श्योर कि यहाँ पे जो कर्सर है इट इज सिलेक्टेड लाइक दिस एंड नॉट अ ब्लेड टूल। अगर आप ब्लेड सिलेक्ट कर रहे हो एंड यू आर क्लिकिंग एनीवेयर ओवर हियर तो वो आपकी ऑडियो या वीडियो फाइल को काट देगा वहाँ से। तो आई जस्ट मेक यूज ऑफ कमांड Z टू अंडू दिस एंड आई मेक यूज ऑफ दिस कर्सर। अब ये हो जाने के बाद आई कैन राइट क्लिक एंड ओपन इट इन अ फ्यूजन पेज, यानी कि ये टैब। और यहाँ पे मैं स्प्लाइन जो थी, जो यहाँ पे जो कर्व वाला था, जो वेव फॉर्म था, उसे मैंने हटा दिया बिकॉज दैट्स नॉट व्हाट आई वांट राइट नाउ। अब यहाँ पे यू कैन फाइंड मीडिया इन 1 एंड मीडिया आउटपुट 1। अब यहाँ पे बहुत डिटेल्स में मत जाना, डोंट आस्क सम डिटेल डिस्क्रिप्शंस, आई जस्ट शो माई वर्क फ्लो टू सी हाउ आई गेट द आउटपुट। तो यहाँ पे टू एड सम काइंड ऑफ अ विनियट इफेक्ट या फिर शैडोज लाइक अ प्रोफेशनल सेटिंग, तो यहाँ पे दिस इज द बटन विच आई ड्रैग एंड ड्रॉप। तो ये है बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड मैंने यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। अनदर वे टू ब्रिंग योर बैकग्राउंड इज टू होल्ड योर शिफ्ट एंड स्पेस की। अब यहाँ पे आई कैन सर्च फॉर बैकग्राउंड, ये BG करने के बाद आई कैन जस्ट सिलेक्ट एड बट नाउ दैट आई हैव आई कैन जस्ट कैंसिल दिस, और इसका जो आउटपुट है आई जस्ट ड्रैग इट एंड आई विल इंसर्ट इट ओवर हियर। तो यहाँ पे मर्ज हो जाएगा, जो बैकग्राउंड है वो मेरी मीडिया फाइल से मर्ज हो जाएगी। एंड बैकग्राउंड के ऊपर आई वुड लाइक टू ऐड दिस रेक्टेंगल बॉक्स। अब रेक्टेंगल बॉक्स जो है, अब इसका भी जो आउटपुट है आई विल मर्ज इट विद द इनपुट ऑफ बैकग्राउंड 1। अब यू कैन सी व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, एक ब्लैक रेक्टेंगल बॉक्स है, इट इज बीइंग ओवरलैप्ड विद द वीडियो। अब आई डोंट वांट द बॉक्स इटसेल्फ बट आई वांट द बॉक्स शैडो टू बी अप्लाइड ऑन माई वीडियो। तो ये करने के लिए मैं क्या करूँगा, रेक्टेंगल सेलेक्ट करने के बाद आई जस्ट क्लिक ऑन इंस्पेक्टर टैब। ये करने के बाद you will find solid is there. I will make sure this is ticked and I will also invert this. Invert करने के बाद होता है कि you can see rest of the video is blacked out. Only the center of the rectangle is where you can see me. Correct? अब ये हो जाने के बाद I will just change the width and height of the entire video. तो I'll just change this to 1 and change this to 1. अब आप पूछोगे तो फिर मतलब ही क्या है if you are just entering the entire rectangle inside your video. Let me just show you. तो यहाँ पे जो soft edge है, instead of 0.0, if I change this to somewhere like this, you can see यहाँ पे जब मैं इसे कर रहा हूँ you can find that जो background है वहाँ पे shadows आ रही है। तो this is what I actually want to do. तो instead of 0.2, I'll just change this to somewhere, let's say 0.5. You can see it is much better. What if I change this to 0.7? यू कैन सी और बेटर हो गई ये वीडियो।
तो इफ़ आई जस्ट प्ले इट अराउंड एट 0.6, दिस इज़ मच कूल आई वुड से। अब बॉर्डर विड्थ जो है इससे मुझे नहीं यूज़ करना, क्योंकि अगर मैं बॉर्डर विड्थ यूज़ करूँगा तो यू कैन सी व्हाट हैपन्स, जो शैडोज़ है वो बहुत अंदर चली जाएंगी, राइट। वी डोंट वांट शैडोज़ टू बी हिंडरिंग विद द ऑब्जेक्ट ऑफ द वीडियो विच इज़ मी। तो मुझ पे शैडोज़ नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन जो मेरी बैकग्राउंड है वहाँ पे शैडोज़ आनी चाहिए। इट शुड बी लाइक अ विनियड इफेक्ट। तो यहाँ पे आई वोंट मेस अराउंड विद दिस, आई जस्ट मेक श्योर दैट दिस जीरो इटसेल्फ। फाइन, ये करने के बाद आई विल जस्ट चेंज द कॉर्नर रेडियस। अब यहाँ पे एकदम शार्प एजेस वाली मुझे नहीं चाहिए शैडोज़। इफ़ आई चेंज दिस समथिंग लाइक दिस, तो यू कैन सी जो मेरी शैडोज़ हैं वो बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट, टॉप लेफ्ट पे एकदम शार्प नहीं है। इट इज़ लाइक अ राउंडेड इफेक्ट। तो यहाँ पे मैं बहुत ही छोटी सी कॉर्नर रेडियस रखूँगा, समवेयर अराउंड दिस, विच इज़ प्रीटी मच गुड इनफ, एंड आई विल लीव इट एज इट इज़। अब मैं अगर वापस एडिट टैब में जाऊँगा तो यू विल फाइंड कि क्लिप 1 में तो, एक मिनट मैं इससे पहले म्यूट कर देता हूँ सो दैट एनेबल क्लिप मैंने हटा दी तो इससे म्यूट होगा। या फिर अनदर वे टू म्यूट योर एंटायर ऑडियो फाइल इज टू जस्ट क्लिक ऑन एम ओवर हियर विच विल म्यूट माई एंटायर ट्रैक, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे शैडोज़ है, लेकिन यहाँ पे शैडोज़ नहीं है, पार्ट 2 में नहीं है, पार्ट 1 में है। तो हाउ डू आई अप्लाई द सेम सेटिंग्स टू द रेस्ट ऑफ माई क्लिप्स? डू आई हैव टू गो अगेन इन द फ्यूजन टैब फॉर ईच एंड एवरी क्लिप एंड मेक द एंटायर सेटिंग्स? नो, देयर इज अ शॉर्टकट वे टू डू इट। जस्ट क्लिक ओवर हियर, गो टू द फ्यूजन टैब एंड क्लिक ऑन क्लिप्स ओवर हियर। तो जो क्लिप्स की टैब है, इट विल शो अप ऑल द क्लिप्स इन योर टाइमलाइन। और यहाँ पे मैं शिफ्ट बटन होल्ड करके रखूँगा एंड आई विल सिलेक्ट माई क्लिप 2, क्लिप 3 एंड क्लिप 4। ये सारे सिलेक्ट करने के बाद आई विल राइट क्लिक ऑन माई क्लिप 1 एंड आई विल अप्लाई द कॉम्पोजिशन। ये करने के बाद आई विल ओवर राइट। तो इससे होगा ये कि जो भी फ्यूजन सेटिंग्स मेरी क्लिप 1 में थी वो सारी सेटिंग्स अप्लाई हो जाएगी क्लिप 2, क्लिप 3 एंड क्लिप 4 में, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें यू कैन सी इट हैज़ बीन अप्लाइड। शैडोज अप्लाई करने के बाद वॉट यूल नोटिस इसकी मेरी जो स्किन है, मेरी स्किन टोन जो है वो काफ़ी पेल दिख रही है। लाइक जब लाइट पड़ती है आपके स्किन पे तो योर स्किन शुड नॉट लुक वेरी पेल। स्किन का जो नेचुरल स्किन टोन है, लाइक आई हैव फेयर स्किन, राइट। सो यहाँ पे मुझे चाहिए कि मेरी जो स्किन टोन है नेचुरल वे पे यहाँ पे निखर गया है। तो आई विल जस्ट गो टू द कलर करेक्शन टैब एंड यहाँ पे कलर करेक्शन में यू विल फाइंड अ बंच ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस। तो यहाँ पे HDR के बाजू में जो टैब है, दिस इज़ वेयर आई विल प्ले अराउंड विद द कलर व्हील्स, लाइक योर ह्यू, सैचुरेशन, योर शैडोज, योर हाईलाइट्स, द ल्यूमिनेंस। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट यू डोंट हैव टू गो इन टू ईच एंड एवरी डेप्थ ऑफ इट। यहाँ पे ओनली 2 थिंग्स विच आई प्ले अराउंड विद सैचुरेशन एंड ह्यू बेसिकली कलर्स होते हैं, और सैचुरेशन होता है कि कलर्स की जो डेप्थ है वो कितनी निखर के आनी चाहिए आपकी वीडियो में। दैट्स ऑल यू नीड टू नो। अब द मोर यू मूव टू योर वीडियो टूवर्ड्स राइट, द मोर द कलर्स विल बी टूवर्ड्स द रेड शेड, वार्म कलर्स, एंड द मोर यू शिफ्ट योर सैचुरेशन लेवल फ्रॉम 52 डाउनवर्ड्स, इट विल चेंज टूवर्ड्स द डार्कर शेड और कूल कलर्स, ठीक है। अगर मैं करके दिखाऊं तो यू विल फाइंड कि मेरी जो स्किन टोन है वो थोड़ी ऑरेंजिश पिंकिश साइड जा रही है, और अगर मैं नीचे की तरफ जाऊँ तो यू विल फाइंड कि इट्स वेरी पेल एंड ब्लैक एंड वाइट लास्ट में हो जा रहे हैं, राइट। तो आई विल जस्ट प्ले अराउंड लिटिल बिट। यू कैन सी जब मैं बढ़ा रहा हूँ इससे 50 के ऊपर जा रही है वैल्यू, तो यू कैन फाइंड माई स्किन टोन जो है वो इट इज़ कमिंग एग्जैक्टली हाउ आई वॉन्ट इट टू बी। तो इससे मैं 59.4 इज़ एग्जैक्टली वॉट आई फाइंड दिस टू बी प्रिसाइज। इसे मुझे अगर व्यू करना है तो आई कैन जस्ट प्रेस ऑन कमांड F और कंट्रोल F टू व्यू इट इन अ फुल स्क्रीन। तो दिस इज द एक्चुअल स्किन टोन विच हाउ वी एज ह्यूमन बींग्स व्यू इट इन रियल वर्ल्ड, ठीक है। अब ये करने के बाद आई जस्ट प्ले अराउंड यू लिटिल बिट। अगर मैं यू को भी, अगर कोई भी आपको कलर व्हील चेक करना है कि इससे होगा क्या, तो यू जस्ट प्ले अराउंड द स्लाइडर एंड व्यू ऑन द क्लिप इटसेल्फ। तो इफ आई जस्ट चेंज अराउंड द यू कैन फाइंड कि जो मेरी स्किन टोन है उसका कलर पूरा चेंज हो रहा है। तो इफ आई मूव टूवर्ड्स डाउन यू कैन सी ग्रीन, ब्लू, पर्पल, वो सब हो रहा है बिकॉज इट्स अ कूल कलर। इफ आई मूव टूवर्ड्स राइट हैंड साइड इट इज़ बिंग पिंकिश, रेड एंड वायलेट बिकॉज इट्स अ वार्म कलर। तो यहाँ पे मैं बहुत चेंज नहीं करूँगा, अदरवाइज माई स्किन विल लुक वेरी ऑरेंज एंड पिंक विच आई डोंट वॉन्ट। तो 50.4 इज़ द बेस्ट, यू कैन सी राइट हियर, इट लुक्स प्रीटी गुड। अब ये करने के बाद दिस इज डन। अगेन ये जो कलर करेक्शन है ये वीडियो में आपको दिखेगा, लेकिन ये वीडियो में अगेन माई स्किन टोन इज़ वेरी पेल। यू कैन सी द डिफरेंस नाइट एंड डे। यहाँ पे फुल स्क्रीन करने के बाद यू विल फाइंड इनिशियली आप देखो मेरी स्किन टोन कैसी है और यहाँ पे स्किन टोन कैसी है। तो you'll have to take into account each and every one of these things because people will be viewing on their cell phones, not in a timeline view जो आप अपने लैपटॉप में देख रहे हो। तो you have to make sure कि आपकी वीडियो जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से दिखे, राइट।
तो यहाँ पे आई जस्ट कॉपी द सेटिंग्स, आई जूम आउट, और इसकी जो कलर करेक्शन वाली सेटिंग्स है, आई विल होल्ड माई शिफ्ट की एंड आई सेलेक्ट माई अदर 3 क्लिप्स, आई राइट क्लिक ऑन द क्लिप्स एंड आई पेस्ट एट्रीब्यूट्स। तो इससे होगा ये कि जो भी मेरी वीडियो एट्रीब्यूट्स है जो कलर करेक्शन वाली है वो सारी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। फाइन। अब अप्लाई करने के बाद होगा ये कि आपकी जो क्लिप्स है उनके बीच में यू माइट फाइंड अ गैप, राइट। यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं जूम इन करके तो यू विल फाइंड यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप आ गया, विच इट शुड नॉट बी देयर। अदरवाइज होगा ये कि फॉर अ सेकेंड और अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आपकी वीडियो जो है वो ब्लैकआउट हो जाएगी। तो यू डोंट वांट दैट टू हैपन। तो अब बस करना ये है कि एक अंडू करना है, विच इज कमांड Z। तो यू कैन सी क्लिप्स वापस से अपने आप से अटैच हो गई। अब इससे आपका कलर करेक्शन जाएगा नहीं, कलर करेक्शन विल बी देयर, बट जो क्लिप्स आपकी स्प्लिट आउट हो गई थी वो वापस से एम्बेड हो जाएगी। ठीक है। नाउ द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो इटसेल्फ कंटेन्स द हुक। ठीक है, ये जो पार्ट 1 है इट कंटेन्स द हुक। अब हुक आप इतना एंगेजिंग कैसे कर सकते हो? फर्स्ट यू हैव टू मेक श्योर कि व्हाट योर रील इज ऑल अबाउट। उतना अगर आप एक व्यूअर को कन्वे करते हो तो दे विल नो कि वेदर दे हैव टू इवन स्पेंड देयर टाइम और नॉट। तो व्हाट आई प्रेफर टू डू इज आई लाइक टू ऐड टेक्स्ट ओवर हियर एंड आई लाइक टू ऐड सम काइंड ऑफ अ जूम आउट इफेक्ट विद अ वुश साउंड। तो एक मैं यहाँ पे एक बिग आइडिया दे रहा हूँ कि हाउ आई वॉन्ट माई वीडियो क्लिप्स टू बी। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, माई माउथ इज बीइंग ड्राई, आई हैव टू ड्रिंक वाटर। तो मैं ज़रा पानी पी के आता हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पे यू कैन सी कि जो वीडियो है हुक, यहाँ पे अगर मुझे ऐड करना है, लाइक लेट मी जस्ट अनम्यूट टू नो व्हाट दिस वीडियो इज ऑल अबाउट। तो आई जस्ट लिसन टू टिल दिस पार्ट। ठीक है। Confused about do follow and no follow backlinks? Don't worry, I got you covered. अब देख सकते हो ऑडियो कितना क्रिस्प एंड कितना शार्प है। इट्स लाइक एज इफ आई हैव शॉट यूजिंग सम काइंड ऑफ एक जो वो शॉटगन माइक होता है ना, आई हैव यूज्ड दैट काइंड ऑफ अ माइक, बट आई हैव नॉट, आई हैव जस्ट सिंपली प्रोसेस्ड माय ऑडियो यूजिंग एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स। तो ये वीडियो बेसिकली एसईओ रिलेटेड है। जो डू फॉलो नो फॉलो बैकलिंक्स होती है उसके बीच में कंपैरिजन है कि वेदर यू शुड गो फॉर द डू फॉलो नो फॉलो बैकलिंक्स। सो फॉर दिस what kind of text I will add is, Confused about do follow and no follow backlinks? Don't worry, I got you covered. तो यहाँ पे I'll just add the text do follow versus no follow backlinks। ठीक है। तो at the start of my video clip I have effects के अंदर titles टैब के अंदर you will find text and text plus। अब जो text है it will not animate, whereas text plus जो है वो animate होगा, as simple as it could get। तो यहाँ पे जो text है वो basically मैं यहाँ पे drag and drop करूँगा and I want 2 text bars। ठीक है। एक होगा फॉर डू फॉलो एंड नेक्स्ट होगा नो फॉलो के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे मैं टाइप करूँगा डू फॉलो एंड मेक श्योर इट्स इन कैप्स। तो सेटिंग्स में जाके आई ऑल्सो चेंज द पोजिशन ऑफ इट। तो व्हेन आई व्यू द वीडियो सेल्फ यू कैन सी कि वीडियो में मेरे फेस के ऊपर आ रहा है, मेरे फेस के नीचे आ रहा है, वेर एक्जैक्टली इट शुड बी पोजिशनड। तो यहाँ पे ये मेरी ये जो लाइन है यहाँ पे वेयर माई टी शर्ट की जो नेक लाइन है उसके नीचे इट शुड स्टार्ट। तो यहाँ पे वाई जो सेटिंग्स है यहाँ पे इंस्पेक्टर एलिमेंट में क्लिक करने के बाद आई जस्ट हैव टू गो ओवर टू द सेटिंग्स एंड पोजीशन में आई कैन चेंज अराउंड द एक्स एंड वाई टू प्लेस द पर्टिकुलर एलिमेंट इन द वे आई वांट। तो वाई अगर मैं माइनस में करता हूँ तो इट विल गो डाउन, इफ आई डू इट इन द प्लस और आई मूव टूवर्ड्स राइट हैंड साइड इट विल गो अप। ठीक है। तो आई जस्ट प्लेस इट राइट हियर। और जो नेक्स्ट है विच इज़ नो फॉलो, टाइटल में आई कैन चेंज इट टू नो फॉलो। ठीक है। सेटिंग्स में जाके अगेन आई प्लेस इट बिलो। ठीक है। अब ये करने के बाद आई विल चेंज द फॉन्ट फैमिली टू विच समथिंग विच आई हैव इंस्टॉल्ड। तो ये जो फॉन्ट स्प्रिंग है, अगेन दिस फॉन्ट यू विल फाइंड इट इन द पिन्ड कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। तो ये जो एसेट्स आपको मिलेगी उसमें फॉन्ट्स में मिल जाएंगे। अब फॉन्ट्स मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कैसे किया है, तो इट्स वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना है। जो भी TFF फाइल्स है वो आप क्लिक करो, डाउनलोड करो एंड देन इंस्टॉल इट, वेदर यूजिंग अ मैक सिस्टम और अ विंडोज सिस्टम। व्हेनेवर यू ओपन दैट पर्टिकुलर फॉन्ट फाइल यू विल इंस्टॉल, ये वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। जस्ट रीस्टार्ट योर DaVinci Resolve एंड इट विल ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई ऑल द फॉन्ट फैमिलीज विद इन द सिस्टम। ठीक है। यहाँ पे जो फॉन्ट फेस है यहाँ पे यू माइट फाइंड अदर ऑप्शंस लाइक बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, रेगुलर एंड सो ऑन डिपेंडिंग ऑन द फॉन्ट स्टाइल दैट यू आर यूजिंग। ये फॉन्ट स्टाइल के लिए सिर्फ रेगुलर अवेलेबल है। एंड द कलर विच आई वुड वांट इज फर्स्ट जो है डू फॉलो उसके लिए वाइट यूज़ करूँगा और जो नो फॉलो है उसके लिए मैं
ऑरेंज यूज़ करूँगा. तो आई जस्ट चेंज द कलर टू समथिंग लाइक ऑरेंज येलोइश शेड. ये कलर एकदम एग्जैक्ट बराबर है. एंड आई जस्ट सिलेक्ट दिस. अब जो साइज़ है आई जस्ट रिड्यूस दिस सो दैट मेरे स्क्रीन के बाहर ना जाए. ठीक है. तो डू फॉलो वर्सेस नो फॉलो इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांट. अब ये जो है इसे मैं कॉपी करूँगा या फिर यहाँ आ जाने के बाद आई चेंज द फॉन्ट फैमिली टू फॉन्ट स्प्रिंग. अगेन आई चेंज द फॉन्ट साइज टू समथिंग लाइक दिस. एंड देख सकते हो कि डिस्टेंस बिटवीन दीज टू इट्स अ लॉट. तो आई जस्ट चेंज दिस. ठीक है. दिस लुक्स प्रीटी गुड. अब यहाँ पे जो वाइट कलर की जो फॉन्ट है, इफ़ आई हैव टू मेक इट स्टैंड आउट, मेरे वीडियो जो है इट्स ऑलरेडी ब्राइट, काफ़ी लाइट पड़ रही है इवन आफ्टर एडिंग शैडोज. जो वाइट टेक्स्ट है समटाइम्स इट माइट नॉट बी रीडेबल. तो इसमें यू हैव टू ऐड सम काइंड ऑफ शैडोज और स्ट्रोक टू दिस फॉन्ट. तो कैसे करोगे? जस्ट स्क्रॉल डाउन टू द पार्ट वेयर यू विल फाइंड ड्रॉप शैडो एंड स्ट्रोक. तो स्ट्रोक यहाँ पे साइज 0 है. इससे अगर मैं बढ़ा देता हूँ लाइक 4 और समथिंग, पहले मैं 0 में आपको दिखाता हूँ हाउ डज इट लुक लाइक. तो यू कैन सी एकदम बहुत ही फीका सा लग रहा है. यू नो अगर मैं इसे अराउंड 4 कर दूँ तो यू कैन सी द डिफरेंस नाइट एंड डे. यहाँ पे आउटलाइन आ गई है, ब्लैक आउटलाइन है. इवन इफ आई डू द सेम थिंग विथ द ऑरेंज वाला जो टेक्स्ट है, लेट मी जस्ट शो यू. तो ये जो ऑरेंज वाला टेक्स्ट है, इफ़ आई चेंज द वैल्यू टू 5, नाउ सी द डिफरेंस. काफ़ी 3D इफेक्ट आता है फॉर द फॉन्ट. तो दिस इज़ वॉट आई हैव ओवर हियर. अब यहाँ पे आई वॉन्ट द जूम आउट इफेक्ट. तो इनिशियली जो वीडियो है इट शुड हैव अ जूम्ड इन एंड कुछ सेकेंड्स में इट शुड जूम आउट विद द साउंड इफेक्ट इटसेल्फ, राइट. तो मैं क्या करूँगा कि इनिशियली आई विल ऐड अ की फ्रेम ओवर हियर. यहाँ पे की फ्रेम्स में बातें होती है बिकॉज की फ्रेम क्या होता है कि बेसिकली इट्स एन इमेज. वीडियो इज़ वॉट? वीडियो इज़ बंच ऑफ डिफरेंट मूविंग इमेजेस, राइट. तो एक फ्रेम आप ऐड करते हो यहाँ पे स्टार्ट इनिशियली एंड यू चेंज द जूम टू बी 1.3. बेसिकली यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ तो यू कैन सी इट सो जूम्ड इन. अब यहाँ पे आई विल जूम इन. आई एम जूमिंग इन द टाइमलाइन. ठीक है. मैं यहाँ पे वीडियो को जूम इन नहीं कर रहा हूँ. ये क्लिक करने के बाद आई एम जूमिंग इन द टाइमलाइन. यहाँ पे मैं वीडियो को जूम कर रहा हूँ. ठीक है. अराउंड 14 मिली सेकेंड इज समथिंग विच इज़ वेरी गुड. इतने में आई वॉन्ट टू कम बैक टू दिस नॉर्मल पोजिशन. तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ विच इज़ द की फ्रेम नोड्स, तो विल फाइंड 2 डॉट्स, 2 वाइट डॉट्स. यहाँ पे होगा 1.3 पे जूम, यहाँ पे आ जाएगा 1 पे जूम. तो इफ आई प्ले द वीडियो नाउ, सी व्हाट हैपेंस. कंफ्यूज्ड? यू कैन सी ऐसे जूम आउट हुआ. तो आई विल ऑल्सो ऐड अ वुश साउंड. तो यहाँ पे आई हैव 20 वुश साउंड्स. तो आई जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप इट राइट हियर. अब यहाँ पे आई वॉन्ट टू सी द वेव फॉर्म्स. ठीक है. तो इससे मैं यहाँ पे ड्रैग करूँगा तो आई कैन फाइंड कि यहाँ पे 20 अलग अलग टाइप के साउंड्स हैं लाइक दिस. फिर एक टाइप का है, फिर एक टाइप का है. यू कैन सी देयर आर बंच ऑफ डिफरेंट साउंड इफेक्ट्स. तो आई थिंक द फर्स्ट वन इज व्हाट आई विल गो अहेड विथ. तो यहाँ पे आई जस्ट कट दिस पार्ट. यहाँ पे जो है यहाँ पे मैं कट डालूंगा बाय कंट्रोल B या कमांड B और डिलीट. एंड ओवर हियर कमांड B और ये पार्ट हटा दूंगा. ठीक है. अब ये जो है इससे मैं ड्रैग करके यहाँ पे इसे यूज़ करूँगा. ठीक है. पर ये जो है इट्स रनिंग एट यू कैन सी 100 स्पीड, जो नॉर्मल स्पीड है उस पर रन कर रहा है. इफ़ आई प्ले द वीडियो यू विल फाइंड कि जो जूम इफेक्ट है वो काफ़ी फास्ट हो रहा है एंड जो साउंड है वो काफ़ी स्लो चल रहा है. लेट मी शो यू व्हाट आई मीन बाय दैट. इट डजंट मेक सेंस, इतना अच्छा साउंड नहीं कर रहा है. तो इन दैट केस आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल आई चेंज द वॉल्यूम. इससे मैं थोड़ा सा आई विल चेंज द वॉल्यूम एंड आई मेक इट डिक्रीज द वॉल्यूम. एंड जो स्पीड है इससे मैं अराउंड 2x पे ला दूंगा. ठीक है. सो 2x स्पीड के लिए आपको चेंज करना है 200% पे. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस. दैट साउंड्स सो कूल लाइक दैट. तो दिस इज व्हाट आई वांट. ये हो जाने के बाद let me just unmute my track. Confused about to follow and no follow backlinks? Don't worry, I got you covered.
अब यहाँ पे डू फॉलो वर्सेस नो फॉलो बैकलिंक्स के बाद यू कैन सी जो टेक्स्ट है मेरी वो काफ़ी देर तक चल रही है. आई डोंट वांट दैट टू हैपन. तो Confused about do follow and no follow backlinks? बस आई थिंक यहाँ तक इनफ है. ओनली टिल दिस पॉइंट आई वांट माय एंटायर टेक्स्ट टू बी डिस्प्लेड. तो इससे मैं यहाँ पे ऐसे करके ड्रैग कर सकता हूँ, या फिर आई कैन जस्ट मेक यूज ऑफ, आई कैन जस्ट होल्ड माई शिफ्ट बटन एंड आई कैन सेलेक्ट बोथ ऑफ दीज क्लिप्स. और जो शिफ्ट बटन होल्ड करने के बाद जो क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट है वो अगर मैं की प्रेस करूँ, यू कैन सी द वीडियो हैज़ बिन ट्रिम डाउन. तो Confused about do follow and no follow backlinks? Don't worry. डोंट वरी के बाद आई गॉट यू कवर्ड जो है, आई वॉन्ट अगेन अ जूम इन इफेक्ट. स्टार्टिंग में जूम आउट था, अब यहाँ पे आई वॉन्ट जूम इन इफेक्ट. ठीक है, तो लेट मी ऑल्सो एड वन मोर की फ्रेम. Don't worry. तो हियर आई विल एड वन की फ्रेम एंड अनदर राइट ओवर हियर. लेट मी जस्ट पुल आउट दिस थिंग. इसे मैं कॉपी करूँगा सबसे पहले. क्योंकि अगर मैं कॉपी कर रहा हूँ इससे कंट्रोल C और यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा कंट्रोल V, तो आई नो एग्जैक्टली वेयर आई हैव टू यूज माई अनदर फ्रेम फॉर जूमिंग इन. ठीक है, तो आई थिंक दिस इज द पॉइंट वेर एग्जैक्टली आई वुड वांट द जूम इफेक्ट टू बी. तो यहाँ पे मैं कर दूंगा इसे 1.15, नॉट 1.3. 1.3 करूँगा तो इट वोंट, ये जो है मेरा ये स्टाइल जो है इट वोंट बी डिस्प्लेड. तो 1.15 फाइन. Worry. I got you covered. Yes, this looks pretty cool. अब यहाँ पे यू कैन सी यहाँ पे काफ़ी सारा स्पेस है, ये अनवांटेड है, तो इससे मैं उड़ा दूंगा. ठीक है, तो यहाँ पे I'll just select, I'll press on control B. Again I'll go over here, I'll press on control B and zoom out करने के बाद what I'll do is यहाँ पे भी you can see there is so much साइलेंस. तो ये जो भी साइलेंसेस है आई डोंट वांट. तो ये सारी क्लिप्स मैंने शिफ्ट होल्ड करके क्लिक कर ली. जूम आउट करके मैं ये मेक श्योर कर रहा हूँ कि बाकी कोई क्लिप्स तो सिलेक्ट नहीं हुआ इससे. ये करने के बाद आई जस्ट होल्ड माई शिफ्ट की एंड आई मेक यूज ऑफ डिलीट. शिफ्ट डिलीट करने से होगा ये कि इफ़ आई जस्ट डिलीट दिस तो बीच में गैप हो जाएगी. इफ़ आई डू शिफ्ट डिलीट तो होगा ये कि शिफ्ट डिलीट करने से क्लिप्स जुड़ जाएंगी. ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे मैग्नेट ऑन है, लिंक ऑन है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगी. ठीक है, I got you covered. Do follow links are the links which pass on the link equity, or some people might like to call it as link juice. ठीक है, तो यहाँ पे आई एम एक्सप्लेनिंग द फर्स्ट पार्ट दैट लिंक्स डू फॉलो बैकलिंक्स है बेसिकली अपनी डोमेन अथॉरिटी पास करते हैं. यू बेसिकली गेट योर ओवरऑल डोमेन अथॉरिटी स्कोर इंक्रीजेस बिकॉज जो भी लिंक जूस है वो पास ऑन हो रही है. ठीक है, तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन पॉइंट. अब यहाँ पे देयर आर मल्टीपल डिफरेंट अप्रोचेस विच यू कैन गो एड विथ. अगर आपको चाहिए कि यू वांट टू ऐड एंड एक्सप्लेन दिस फंडामेंटल इन अ मोशन ग्राफिक फॉर्मेट, यू कैन क्रिएट मोशन ग्राफिक्स. I personally don't know how to create motion graphics, but I can actually give a small suggestion कि Canva में अगर pro subscription आपका है तो there are a bunch of different animated graphics which you can make use of, और वहाँ पे आप motion graphics clip create करके यहाँ पे import कर सकते हो. Second option is to actually run your clip as it is the way it is being shown like this, where there will be text at the bottom running in terms of animated captions, या फिर आप कोई बी रोल फुटेज अपना यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो विद सम काइंड ऑफ ट्रांजिशंस. तो यहाँ पे बेसिकली जो मेरी हुक की क्लिप है और जो मेरी मेन कंटेंट है, ये दोनों के बीच में देयर शुड बी सम काइंड ऑफ अ ट्रांजिशन लाइक अ कैमरा फ्लैश इफेक्ट विद अ कैमरा साउंड इफेक्ट एंड सो ऑन. ठीक है, तो इससे मैं करूँगा ये. लेट मी जस्ट शो यू हाउ आई डू दिस. पहले तो मैं सेव कर लूँगा बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पे जो फिल्म बन है, यू कैन सी हाउ डज इट लुक लाइक. तो ये जो फिल्म बन है ट्रांजिशन, आपने काफ़ी बार देखा होगा कि जो कैमरा क्लिक की आवाज़ आती है एंड कैमरा की जो फ्लैश इफेक्ट होती है वो वीडियो में दिखती है. तो आई जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप इट राइट डाउन हियर. तो मैं मेक श्योर करूँगा कि ये जो क्लिप है ये पूरी की पूरी मेरी सेकेंड क्लिप में ना यूज़ हो, पर दोनों क्लिप्स के बीच में यूज़ हो. राइट, इट ओवरलैप्स बिटवीन दीज टू क्लिप्स ताकि ये ट्रांजिशन बने. लेट मी शो यू हाउ व्हाट आई मीन बाय दिस. Covered. Do follow. अब इससे हुआ ये कि ये जो थी एग्जैक्ट क्लिप जो थी वो एक ओवरले नहीं हुई, इट वाज लाइक अ सेपरेट क्लिप. तो हाउ डू आई ओवरले दिस थिंग. तो ये क्लिप सेलेक्ट करने के बाद आई गो टू द कंपोजिशन टैब. कंपोजिट में करने के बाद कंपोजिट मोड में
I will scroll down to the part where I find screen. Now let me play. Covered. To follow अब यहाँ पे opacity बहुत ज़्यादा है, तो I'll just drop down the opacity to somewhere around 38, 39. Let's see what happens now. to covered. To follow You know, you can see this is how it looks like. So perfect. अब यहाँ पे मैं कैमरा साउंड इफेक्ट भी ऐड करना चाहूँगा, तो आई हैव कैमरा शटर. यू कैन सी यहाँ पे इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, देखते कैसी लगती है साउंड. covered. To follow सो कूल. तो अब यहाँ पे जो वॉल्यूम है आई कैन प्ले अराउंड विद दिस, पर ये जो खुद की जो साउंड है इट्स सो लो साउंडिंग कि इससे मुझे साउंड और मैं कम कर दूंगा तो इट वोंट बी नोटिसेबल. तो इसे जैसा है मैं इसे वैसा रहने दूंगा. बस ये है कि जो ये मेरी क्लिप है इसे मैं थोड़ी सी फास्ट कर दूंगा. तो यहाँ पे स्पीड चेंज में इंस्टेड ऑफ नॉर्मल मोड आई विल चेंज दिस टू 1.5x स्पीड. तो आई विल जस्ट चेंज दिस टू 150% and I'll place it right here. Same goes with the audio as well, 150%. And yep, let's see how it works. got you covered. To follow Awesome. links are the links which pass on the link equity, or some people might like to call it. अब ये एक तरीका है, आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो, या फिर आपको चाहिए कि आप अपनी थोड़ी सी एडिटिंग स्किल्स थोड़ी सी एनहांस करो, या फिर आप अपने व्यूअर्स को अच्छी तरह से एंगेज करो. तो व्हाट यू कैन डू इज, लेट मी जस्ट शो यू व्हाट यू कैन डू. तो इन दिस केस आई जस्ट चेंज दिस ओवर हियर. आई विल मेक यूज ऑफ कंट्रोल S. ये करने के बाद मैंने क्या किया कि बेसिकली मेरी जो यहाँ पे फिल्म बन इफेक्ट थी, मैंने इंस्टेड ऑफ हियर आई जस्ट मूव्ड इट लिटिल बिट अपवर्ड्स. ठीक है, यहाँ पे बंच ऑफ डिफरेंट ओवरलेज. तो यहाँ पे जो ओवरले आई वुड लाइक टू मेक यूज ऑफ इज दिस काइंड ऑफ ग्रिड ओवरले वुड लुक गुड. अदरवाइज आई कैन ऑल्सो मेक यूज ऑफ 1 सेकेंड. आई एम नॉट क्वाइट श्योर कि ये पे आधी क्यों आ रही है. लाइक इट शुड बी डिस्प्लेड द एंटायर थिंग, राइट? तो लेट्स इम्पोर्ट दिस एंटायर थिंग एंड लेट्स सी व्हाट्स द इशू बिहाइंड दिस. ये भी एक है विच वुड लुक गुड, बट फॉर नाउ लेट मी जस्ट ड्रैग इट राइट हियर. यहाँ पे अगेन जो ऑडियो तो है नहीं, यहाँ पे फिर भी ऑडियो है विच विल हिंडर अराउंड विद दिस. तो आई जस्ट अनलिंक एंड आई विल डिलीट द ऑडियो. ठीक है, यहाँ पे दिस इज व्हाट आई ऐड. इफ आई जूम आउट, यहाँ पे यू कैन सी कि जो ये जो है, ये वीडियो जो है, आई वॉन्ट टू मेक दिस एज अ बैकग्राउंड. और मेरी ये जो वीडियो जहाँ पे वेर आई एम स्पीकिंग, उसका एक सेक्शन लाइक हाउ इन माई स्क्रीन रिकॉर्डिंग राइट नाउ यू आर फाइंडिंग मी इन अ स्मॉल सर्कल at this point where my cursor is going around, उसके आसपास के एरिया में you are finding me, right? So that kind of a circle mask effect, if you want to be shown in your video itself, तो you can do that by going to the color correction mode. तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि ये मेरी बैकग्राउंड वीडियो नीचे आएगी और ये वाली वीडियो ऊपर आ जाएगी. तो लेट मी जस्ट डू दैट. इससे मैं करूँगा ऊपर, कंट्रोल Z. फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट जूम, आई जस्ट मेक श्योर कि मेरी ये जो फिल्म बन ट्रांजिशन एक और ऊपर चली जाए, ये ऊपर आ जाए, ये नीचे आ जाए. दिस इज द हायरार्की विच आई वुड लाइक टू फॉलो. अब इससे होगा ये to follow link कि बेसिकली इफ आई जस्ट शो यू व्हाट आई मीन बाय दिस, लेट मी जस्ट शो यू. ये मेरी जो ग्रिड वाली जो है वीडियो, इफ आई जस्ट कॉपी दिस, क्योंकि ये यू कैन सी कि यहाँ पे ख़त्म हो रही है, लेकिन मेरी जो वीडियो है वो यहाँ तक चल रही है. तो आई हैव टू फिल इन दिस वॉइड एज वेल. तो इसे मैं करूँगा कॉपी. ठीक है, और यहाँ पे मैं कर दूंगा पेस्ट. फर्स्ट लेट मी जस्ट ड्रैग इट लिटिल बिट अपवर्ड्स, कॉपी. ठीक है, और यहाँ पे करूँगा पेस्ट. अब पेस्ट करने के बाद यहाँ तक लाऊंगा, शिफ्ट एंड क्लोज्ड स्क्वायर ब्रैकेट. तो यू कैन सी ये इतनी जगह मैंने कर ली. ठीक है, इससे मैं ले जाऊँगा नीचे. ठीक है, अब ये वाली जो मेरी वीडियो फाइल है इसे मैं सिलेक्ट करके जाऊँगा कलर करेक्शन मोड में. कलर करेक्शन मोड में जाने के बाद ये जो प्लेस है यहाँ पे, ये पार्ट को मैं यहाँ पे ड्रैग करूँगा, लिंक बनाऊँगा, एक लिंक नोड, राइट क्लिक करूँगा एंड आई विल ऐड अ अल्फा आउटपुट.
अल्फ़ा आउटपुट करने के बाद इसका आउटपुट आई विल अटैच इट विथ अल्फ़ा आउटपुट, और यहाँ पे ये जो है पार्ट, यहाँ पे एग्जैक्टली आई विल सिलेक्ट दिस काइंड ऑफ सर्कल को मैं एनलार्ज करूँगा, ठीक है, अप अंटिल दिस पॉइंट यू कैन सी। और ये जो सॉफ्ट है इससे 2.0 अगर मैं 2 रखता हूँ तो यू कैन सी व्हाट हैपेंस, यहाँ पे एक शेडी सा इफेक्ट आ रहा है, यू कैन सी देयर इज काइंड ऑफ स्मज काइंड ऑफ एन इफेक्ट। अगर मुझे एकदम प्रॉपर सॉलिड सर्कल चाहिए तो फॉर दैट आई विल हैव टू चेंज द वैल्यू टू समथिंग लाइक 0.1, ठीक है, 0.1, एंड आई विल जस्ट make use of this. Fine. If I go to the edit tab, you can see this is how it looks. अब अगर यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में जाके मैं इसे जूम आउट कर रहा हूँ तो यू कैन सी वीडियो मेरी एज इट इज़ रहेगी, फाइन। एंड इसके नीचे यहाँ पे ये एरिया में जहाँ पे माई कर्सर इज मूविंग, यहाँ पे आई कैन ऐड माई कैप्शंस, ठीक है, जो एनिमेटेड कैप्शंस होगा, एक्सप्लेनेशन वो यहाँ पे दिखेगा, और आई कैन इवन ऐड अदर एलिमेंट्स, अदर बी रोल फुटेज एंड थिंग्स लाइक दैट, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली व्हाट आई वुड डू। ये हो जाने के बाद आई कैन ऐड another transition like let me show you another transition, something like glitch effect. तो glitch effect के लिए पहले glitch की जो क्लिप है आई विल पेस्ट इट राइट हियर, जूम इन कर दूंगा, बीच में लाऊंगा सो दैट इट ओवरलैप्स बिटवीन 2 क्लिप्स, एंड इसकी जो composite मोड है इंस्टेड ऑफ नॉर्मल इट इज़ स्क्रीन, and opacity भी I will drop it down to about around 35 or so. तो you can see this is how look, ठीक है। इसकी भी जो स्पीड है I will change this to about 2x speed, तो 200% करने के बाद इसे बीच में लाऊंगा, एंड इसके लिए जो ऑडियो फाइल है दिस विल बी प्रोसेसिंग, जस्ट लिसन टू दिस, यू कैन सी ये साउंड है जो मोस्ट ऑफ द पीपल यूज़ फॉर ग्लिच काइंड ऑफ एन इफेक्ट। तो अब इसके लिए भी आई विल चेंज द स्पीड टू 200%, और इसका जो वॉल्यूम है आई विल ड्रॉप इट डाउन लिटिल बिट, ठीक है। ड्रॉप करने के बाद बस यहाँ तक, एंड आई विल क्रॉप इट। नाउ लिसन टू दिस, वेयर एज नहीं इतना अच्छा नहीं था, तो व्हाट आई वुड वांट इज यहाँ तक, लेट मी जस्ट चेंज माई कर्सर यहाँ तक, एंड ठीक है, आई कैन इवन चेंज द स्पीड टू अबाउट 300%, लेट्स सी व्हाट हैपेंस नाउ, ठीक है। whereas yes, this looks much cool, or I can even change this to 250, let's see what happens now. whereas no, अब यहाँ पे समटाइम्स आप पे ग्लिच यहाँ पे आपको दिखेगा कि ऑडियो वीडियो एग्जैक्टली नहीं चल रहा है, क्योंकि आपका जो प्रोसेसिंग पावर है करंटली पूरी तरह से एडिट रेंडर नहीं हुई है, इट इज़ हैपनिंग ऑन रियल टाइम। जो एडिट आपने बनाया है वो आपको दिखा रहा है, तो आपकी जो प्रोसेसिंग पावर है उस पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पे कैसे दिख रहा है आपकी चीज़ें टाइमलाइन व्यू में, ठीक है। तो यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम एंड सी हाउ इट वर्क्स, whereas no, you can see this is how it works, no follow link। अब कुछ ऐसी तरीके से मैं यहाँ पे चीज़ें ऐड करते जाऊँगा, आई हैव सो मेनी अदर थिंग्स विच आई कैन ऐड, तो स्काई इज द लिमिट इन टर्म्स ऑफ योर वीडियो। ये सारी चीज़ें अगर मैंने पूरी वीडियो एडिट कर ली, आई कैन ऐड अ बंच ऑफ डिफरेंट अदर zoom in zoom out effects to capture the user's attention and add more b-roll footages depending on the video। अब मैं सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं जाऊँगा क्योंकि वरना वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, but I have shown a few of the important things which anyone would may wanna make use of while editing their reels। ये सब हो जाने के बाद I can go over to this tab which is render tab। I can change the file name, change the location। यहाँ पे फॉर्मेट क्विक टाइम की जगह पे I'll make sure it is MP4 एंड जो कोडेक है वो है H.264, ठीक है। ये करने के बाद आई कैन ऐड टू द रेंडर क्यू में ऐड करने के बाद आई कैन जस्ट क्लिक ऑन रेंडर ऑल, ठीक है। मान लीजिए अगर मेरी वीडियो रेंडर हो गई तो व्हाट्स द AI टूल विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट टू जनरेट कैप्शंस फॉर फ्री, तो हियर वी हैव ओपस क्लिप्स। तो ओपस क्लिप इज वेयर यू कैन जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप योर वीडियो फाइल। ये करने के बाद आई हैव अदर वीडियोज़ विच आई हैव एडिटेड सो फार। यहाँ पे अगर मैं जाऊँगा एडिट क्लिप में तो यू विल फाइंड
यहाँ पे ऑटो बी रोल भी है, तो AI बेस्ड यहाँ पे बी रोल्स ऐड कर देगा आपके लिए. It will automatically generate captions for you in an animated format. So if I just come right Websites. here, first regularly update all the you can see यहाँ पे animated form में आ रही है. अब यहाँ पे जो caption है वो 1 लाइन में आप दे सकते हो या फिर three caption lines. You can change the color of your highlighted words. You can change the font style, font size, uppercase or so, and many other things which you can change and render this and download. So this is my entire process to edit and publish my reels. If you guys liked and enjoyed this video, make sure you leave down the comments and say that you enjoyed this video. And if you guys want to see actually how I engage my audience on social media using single post, you can definitely check out this video. But if you would like to see how I actually do the automations and engage my audience in a way which boosts the algorithm and send them a freebie in the comment section, so you can check out this video.